आपको आवाज आ रही हो तो आप अपनी जो चर्चा कर रहे थे उसको आगे नमस्ते। बढ़ाइए। नमस्ते सभी विद्वानों को सदर नमस्कार। जी तो मैं आज चर्चा करने जा रही हूँ। Today I decide to discuss on Chandramangal Yoga. बेहतरीन। Chandramangal Yoga is very well known and familiar. Can you hear me? यस बिल्कुल यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। And so Chandramangal Yoga is a very well known familiar and yoga. And we all know how it is formed. It is formed when Chandra and Mangala conjoins in a particular house. And sometimes by aspect also this yoga can be formed. And in the Vedic astrology mentions this yoga as Lakshmi yoga. And this is my question: why it is called Lakshmi yoga? There are many eminent astrologers. I have a question. I have a question or request. You may say, then you can disclose me why it is called Lakshmi yoga. Lakshmi yoga, why it is called? I'm asking you, all the नाउ eminent यू आर astrologers आस्किंग of और the. यू वांट टू एक्सप्लेन? आस्किंग। No, I'm explain. I know, but I'm asking because why it is called ओके Lakshmi ओके yoga. It's a big question. So in the Vedic scriptures, it is clearly written as Lakshmi yoga, and by dint of this yoga, people are native earn lots of money, wealth. Even many astrologers says the person with this yoga will have a never-ending money, a supply of money. Money will keep flowing through his hand in so some way or another. So the question is why it is the question. So and in ancient classic texts also describe this as Lakshmi yoga, and ancient texts we know all know that is compiled by our ancient seed, ancient sages, by their transcendental knowledge. So it can never be wrong. So this question is that we, as an eminent or as a scholar, we have to understand what is the intricacies and why the actual intricacies by our keen real intellect, and that what is the actual esoteric meaning in it, I think. And किशोर जी, so किशोर जी। let me yes. हम्म And my perception, I want to share with you that it is Lakshmi Yoga means it makes, not Lakshmi Yoga, the so-called wealth. Lakshmi Yoga, I think it is a Sri Yoga. Sri means perfection. The person having Chandramangal Yoga in their nativity or in the church, the person becomes very perfect in any in which sector they are associated with. That depends on and but which sector they are associated, that doesn't matter, but they are very perfection, whatever work they do with very perfect. And this is Lakshmi yoga. No, wealth is not related here, because wealth is generally we calculate or we conclude wealth from second and 11th. And a yoga, when a yoga forms, the planet should be related to that house. So zodiac fourth lord is moon, and eighth lord is Mars. So where is wealth? Where's the wealth from? Which house wealth is considered? It is not related to Chandra Mangal. So why do we say the Chandra Mangal yoga is the Dhanu yoga, wealth yoga? I think it makes a person perfection or perfectionist. It is actually what the ancients want to say. जी ओके That means it सुमित is. जी इसका जवाब देंगे, उसके बाद मैं कुछ बोलूंगा और मैं चाहूंगा आदरणीय मोहन जी भी जवाब देंगे। हाँ, नहीं very नहीं, quick. I एक मिनट एक मिनट, पहले पहले माफी चाहूंगा मैं एक बार जो है ना डॉक्टर ऋषिकेश जी की क्लास का कुछ टाइम अगर मिल जाएगा तो सबसे पहले वो लेंगे, उसके जी बाद ठीक ठीक। Rakesh ji, it would be better if we discuss tomorrow. नो 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 प्रॉब्लम, वी विल टेक योर इंक्वायरी। चारों Uh, विद्वान अभी आपकी बात का जवाब अभी दे देंगे, लेकिन yes, उससे inquiry means I want to know their actually यस perception. यस, What do they think? ओके ओके, कीप लिसन विद मी। और Hmm. डॉक्टर ऋषिकेश देवनाथ जी, आप अपनी बात को थोड़ी सी जल्दी, सरस्वती जी ने जो मंगल चंद्र के बारे में खुद भी एक्सप्लेन किया, तो उसके ऊपर 2-2 मिनट का टाइम हम सभी विद्वानों से चाहेंगे, ज्यादा नहीं। तिवारी जी, अष्टो तिवारी जी 2 मिनट। जी
देखो इन्होंने ये बात रखी कि चंद्र और मंगल की युक्ति जो है कुंडली में इस प्रकार से वेल्थ वगैरह कैसे दे सकती है। देखो इन्होंने एक बात ये भी रखी कि नेचुरल जोडिया में जो मंगल अष्टमेश है और अष्टमेश और चंद्रमा चतुरेश और उनका संबंध है, किस प्रकार से जो है ये धन योग दे सकता है। मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं, पाराशर ऋषि ने ये क्लियर कर दिया था कि जब कोई ग्रह लग्नेश होता है तो उसको अष्टमेश का दोष नहीं लगता है कभी भी। लग्नेश एक ऐसा ग्रह होता है तो वो चाहे वो सष्टेश हो जाए, चाहे अष्टमेश हो जाए, चाहे वो मार्केश हो जाए, चाहे वो पेश हो जाए, वो हमेशा शुद्ध रहेगा और हमेशा सुख देगा। मतलब भिखारी भी जब होता है ना कोई व्यक्ति, तब भी जब उसके लगनेश की दशा अंतर्दशा प्रभावी होती है तब उसको भीख अच्छी मिल जाती है। मतलब बाकी टाइम भीख मिले ना मिले, उस दशा में जरूर वो सुख से भोगेगा। या लगनेश लगेगा तो उसके घर में, भिखारी घर में कोई शादी मोल होगी, ज्यादा कुछ नहीं होता, ढोल तो बजेंगे बजेंगे, कुछ खुशी तो उसको मिलेगी मिलेगी, कहने का मतलब ये है। तो लगनेश को वजह कभी अष्टमेश का दोष नहीं लगता। और चौथे स्थान में जो है चंद्रमा की राशि पड़ने से संपूर्ण जितने भी सुख है, इसमें चौथे भाव में हेल्थ का भी, जमीन का भी, प्रॉपर्टी का सारे सुख है। जब इन दोनों का जब संबंध बन जाता है तो व्यक्ति को जो है लक्ष्मी योग बताया गया है। और इस चीज की जो क्लियरेशन मिलती है, जितने भी आप बड़े लोग, धनवान लोग जो देखोगे, जो आप दुनिया के सबसे बड़े धनवान टॉप लिस्ट है, उनमें आपको लगभग कुंडली में चंद्र मंगल की युक्ति आपको मिलेगी। हाँ मैडम, हाँ बताइए मैडम। बताइए कि सुख के मतलब, लक्ष्मी के मतलब तो धन ही, धन मेरे एक्चुअली लक्ष्मी सिग्निफाइज वेल्थ। सुख मतलब कि आपके गृह सुख है, अपनी पत्नी का सुख है, वो सुख धन नहीं कहते। हाँ हाँ वासवती जी, हेलो, पत्नी का सुख मैडम देखा जाएगा शुक्र मंगल की युक्ति हो ना कुंडली में। नहीं मैं चंद्रमंगल, चंद्रमंगल के बारे में बात करती हूँ। चंद्रमंगल की कुंडली में पत्नी का रोल नहीं आएगा मैडम, इसमें सिर्फ इसमें धन का, प्रॉपर्टी का, ये सारी सुख में आ जाएगा। धन का, पत्नी का, मैरिटल ब्लीज, प्रोफेशनल। वासवती जी कृपया शांत रहिए सभी, अभी 1 मिनट रुकिए, मेरे को मेरी बात समझ लीजिए। अभी वासवती जी ने जो पूछा था वो उनका जवाब सुमित जी ने भी दिया है, और आदरणीय महेश जी आपसे इसका जवाब। जी 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 चंद्र मंगल योग के बारे में कहा तो सुमित जी ने जैसे बताया वही बात है, क्योंकि अष्टमेश मंगल यदि होता है तो वो एक तो मूल त्रिकोण राशि नहीं होती है मंगल की, वो लगन में होती है मेष राशि। तो वृश्चिक राशि जो है वो मूल त्रिकोण नहीं होती। दूसरा, अष्टमत्व दोष नहीं लगता लग्नेश को। तीसरा, लग्न जो है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों है। चौथा, चंद्रमा केंद्रेश है। अब यदि ये दोनों योग करते हैं, यदि केंद्र त्रिकोणों में करते हैं तो बहुत ही शानदार लक्ष्मी योग बनेगा। एकादश में करेंगे, धन में करेंगे तो भी शानदार योग बनेगा। हाँ, एक बात जरूर है, यदि ये चंद्र मंगल योग अष्टम भाव में हो वृश्चिक राशि में, तो वहां वो राशि थोड़ी पावरफुल हो जाएगी, फिर भी गुड तरीके से धन आएगा, सीधा लॉजिक है इसमें। जी जी धन्यवाद। और इसी बात को मोहन जी और उसके बाद किशोर जी, समय का अभाव है, बस ये बात ध्यान रखना। जी मोहन जी, आवाज नहीं आई है। मोहन जी आपकी आवाज नहीं आई। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी जन्म पत्री में मंगल चंद्र का योग है, मेरा खुद का मीन लग्न है और 10th हाउस में धनु राशि का मंगल और चंद्र मेरे जो है जन्म पत्री में है। मेरी जो मंगल की दशा गई वो बहुत अच्छी गई, चंद्रमा की 10 साल की दशा बहुत बढ़िया गई, और मंगल चंद्र का योग होने के कारण नेम, फेम और मनी और इंटरनेशनल लेवल पे फेमस और सब तरह से मतलब बढ़िया रहता है। तो मैंने ये देखा मंगल चंद्र का योग 11वें स्थान में बढ़िया रहता है। और मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण दे देता हूँ, अमेरिका की जो सबसे बड़ी कार कंपनी थी, उसका जो मालिक था जिसने वो कार कंपनी चलाई और रॉकफेलर था, और उसके 11वें स्थान में मंगल चंद्र की युति थी। तो वो मतलब अमेरिका के धनाढ्य आदमियों में से था, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का रिचेस्ट पर्सन था। मंगल चंद्र का मुझे पर्सनल अनुभव है। मंगल चंद्र खाली जैसे महेश जी ने बताया 8वें घर में नहीं होना चाहिए, 8वें घर में होता है तो भी तकलीफ के साथ हो, पैसा चाहे 2 नंबर से आए, कैसे भी आए पैसा आएगा। लेकिन अगर मंगल चंद्र 10वें घर में हो, 11वें घर में हो, धन स्थान में हो, तो मंगल चंद्र की युति का योग सबसे बढ़िया माना गया है। इस कलयुग में मंगल चंद्र की युति मैंने जिस भी जन्म पत्री में केंद्र में और त्रिकोण में देखी है, वो आदमी सबसे मध्यम से मध्यम परिवार में जन्म लेके सबसे रिचेस्ट पर्सन है, और उसने नेम, फेम, मनी सारे थैंक यू। But in reality, it is not happening. Many persons I have seen that in my professional life. वासवती जी, listen. किशोर जी, सर,
इनका जो प्रश्न है बेसिकली वो है कि चंद्र मंगल की युति को लक्ष्मी योग क्यों कहते हैं, बस सीधी बात Yes, ये है ना। exactly. बाकी से हमें मतलब नहीं वो कहाँ मरना क्या मरना। अब मैं रीजन आपको बताता हूँ जो मुझे जेमिनी के मेरे गुरुदेव ने बताए हैं। इसके 3 रीजन है। पहला रीजन इज दैट कि व्हेनेवर देयर इज चंद्र मंगल युति इन एनी एप्लीकेशन, किसी भी कुंडली में आएगी, तो पहले जमाने में ऐसा व्यक्ति जो था बुरे काम करता था। खास तौर से वो व्यक्ति शराब बेचा करता था, मद्य व्यापारी होता था, स्त्रियों का क्रय विक्रय करता था, ठीक है, और उसकी वजह से उसके पास बहुत धन होया करता था। वो बाई नेगेटिव मीन्स, लेकिन वो धनवान था, उसकी पूछ थी, वैल्यू थी उस व्यक्ति की, तो इसको बोलते थे कि भाई बड़ा धनी है। तो उस जमाने में उसको संदेश के रूप में समझाने के लिए उन्होंने कहा कि भाई ये व्यक्ति, अब गलत तो बोल नहीं सकते थे कि उस जमाने में बोलेंगे तो बड़ा आदमी है, आपको रगड़ लेगा, तो उसको ये बोलते थे बड़ा धनवान आदमी है। भाई गलत मीन से चंद्रमंगल की युति ये काम कराती थी। विशेष तौर से ऐसा आदमी जो था वो आजकल अगर आप देखें तो विजय माल्या का भी चंद्रमंगल का लिंक आपको मिल जाएगा। वो Yes. एक और रीजन था पॉन्टी चड्डा, उनके भी ये कॉम्बिनेशन देखने में आया, और मेरे जानने वाले उनका बार है, उनका भी ये कॉम्बिनेशन है। चंद्रमंगल की बेसिकली युति जो है वो आपको बताती है कि ऐसा पानी गर्म होके जो ठंडा बनाया जाता है, दैट इज शराब, वो शराब होती है, वो उसका व्यापारी है। और आज के संदर्भ में पॉजिटिव है, लेकिन उस जमाने में नेगेटिव था, लेकिन उसके बाद पैसा बहुत होता था। तो लोग ये बोलते थे कि ये लक्ष्मी हो गया यार, इसकी युति को ऐसे व्यक्ति धनवान बन गया। वो बता तो सकते नहीं थे क्यों धनवान बना, एक रीजन ये। दूसरा रीजन इज दैट ये था कि चंद्रमा प्रॉपर्टी का मालिक है, मंगल लग्नेश है। इस व्यक्ति के पास लोगों की प्रॉपर्टी, ये जमींदार था, लोग इसको प्रॉपर्टी दे के जाते थे कि भाई हमारी प्रॉपर्टी लेके हमें किसान के लिए कर्जा दे दो। तो जमींदार था एक प्रकार का, तो इस वजह से इसके पास पैसा ज्यादा होता था, फिर ये लक्ष्मीवान बना। तीसरा जो मेन क्लॉज जो जेमिनी ने इसका आंसर दिया है, चंद्रमंगल एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो एक दूसरे के घर में नीच के हो जाते हैं, जिससे एक जबरदस्त नीच भंग राजयोग बन जाता है कि भाई तू मेरे घर में। और मंगल की एक और टेंडेंसी कि मंगल लगन पे बैठ के चंद्रमा के घर को देख रहा होता है, यानी जमीन को देख रहा होता है। ये वो 3 कारण हैं जिसकी वजह से लक्ष्मी योग उस जमाने में बताया गया। आज के संदर्भ में कहूंगा ये लक्ष्मी योग नहीं है। आज के संदर्भ में लक्ष्मी योग बनता है 8वें और 5वें, दूसरे और 11वें के मेल से। आप ये बिल गेट्स की पत्रिका में देखो, और 11 होना ही चाहिए, नहीं तो वेल्थ कैसे। आप ये बिल गेट्स की पत्रिका में देखिए, आपको क्लियर मिल जाएगा। उसका मिथुन लग्न है, जेमिनी लग्न है, इसीलिए उसका सेकंड और 11th हाउस कनेक्ट किया है। अब इसको यूं समझिए कि जो भी केंद्र के हाउस है उनसे जो दूसरा घर है, अगर वो जितने ज्यादा दूसरे घर पावरफुल होंगे, जैसे लगन का दूसरा घर 2nd हाउस है, चौथे घर का दूसरा घर 5वां घर है, 7वें का 8वां है, और 10वें का 11वां है। जब इनमें जितने ज्यादा ग्रहों का योग कनेक्शन बनेगा, आदमी उतना बड़ा मिलियनर मल्टी मिलियनर बन जाएगा। बिल गेट्स इज द बेस्ट एग्जांपल, उसके चारों घरों का कनेक्शन आपको मिल जाएगा। आप देखिए वो कहाँ पर है, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी। बासमती जी आपने जो चर्चा की है, सभी विद्वान, एक बात हम जुड़ना चाहता हूँ किशोर जी के साथ। किशोर जी के साथ एक पॉइंट, फिर महेश जी की टिप्पणी लेंगे। एक पॉइंट वो पॉइंट है जिसका मन के अंदर चंद्र के साथ मंगल रहेगा, वो एक्साइटेड रहता है, बहुत एक्टिव रहता है। एक्टिव व्यक्ति को पैसा होगा, लेकिन बासमती जी को फॉर ये कर रहा हूँ, मैंने सपोर्ट कर रहा हूँ, सिर्फ चंद्र मंगल ज्योति से धोनी नहीं बनता। ऑलवेज नॉट, बिकॉज़ इट इज माय प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, नॉट ऑलवेज ट्रू। सेकंड होना चाहिए। सेकंड के साथ लक्ष्मी का जो घर है 9th और सेकंड और 11th डेफिनेटली सेकंड एंड कॉम्बिनेशन शुड बी देयर। थैंक यू डॉक्टर जी। आदरणीय महेश जी कुछ टिप्पणी देना चाहते हैं। जी महेश जी। जी एक लाइन बोलना चाहता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ द एमिनेंट एस्ट्रोलॉजर्स। जी एक लाइन बोलना चाहता हूँ। अभी ऋषिकेश जी ने बताया, वही मैं बता रहा था। चंद्रमा मन का कारक है, मंगल एनर्जी का कारक है। ऐसा व्यक्ति किसी भी कार्य को पूरे मन और एनर्जी से करता है तो सफलता मिलनी निश्चित है। एक बात। दूसरी बात, बासमती जी ने कहा कि भाई किसी एक विद्वान सभी कहते हैं किसी एक योग से धनी नहीं होता, तो किसी भी एक योग से नहीं होता। इसमें चंद्र मंगल का क्या दोष है? किसी भी एक योग से धनी तो वैसे भी नहीं होता, है ना? मिथुन लगने का होता है तब धनी बनने का बहुत नहीं, बात यह कि किसी भी एक योग से नहीं होता है, पूरी कुंडली देखनी पड़ती है। जी थैंक यू। लेकिन उसको लक्ष्मी योग से डिस्क्राइब किया कि वो लक्ष्मी योग मेन जो धन आता है वो लक्ष्मी हो जाती है, बात खत्म। जो काम करेगा मन से काम करेगा तो धन आएगा, वो लक्ष्मी। बट लेकिन इन रियलिटी इट इज नॉट हैपनिंग। मैं इसमें कुछ मैं टिप्पणी देना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। एक मिनट सुमित जी, पांडे जी कुछ बोल रहे हैं। पांडे जी बोलिए। सर सभी को नमस्कार। ये जो चंद्र मंगल का योग है, नाड़ी ज्योतिष के अनुसार जो चंद्रमा है वो पार्वती देवी है और मंगल जो है भूमि पुत्र है, तो ये इसको माँ बेटा योग, जमीन जायदाद योग
और ये लक्ष्मी योग, ये तीनों योग कहते हैं, क्योंकि यदि माता के घर में बेटा चला जाएगा, बेटे के घर में माता आ जाएगा। मैं चौथा भाव जो है माता का है। मैं यदि माता के घर में यदि मंगल बैठ जाएगा तो जमीन जायदाद योग बन जाएगा। और यदि देखा जाए तो ये जो दोनों का माँ बेटा योग भी है और ये लक्ष्मी योग भी है। और वास्तव में जो किशोर आदरणीय किशोर जी ने कहा है बहुत ही सुंदर, जहाँ योग ये बनता है वैसे लोग बहुत ही धनाढ्य देखे गए हैं। ऐसा मैंने भी कुंडली में अप्लाई किया सर। मैं वासवती जी से एक अनुरोध है मेरा, ये कह रहे कि ये बनता हुआ नहीं देखा गया, वो कुंडली भेज दें कृपया, हम उस पर देख लेंगे क्यों नहीं बना। ये और कोई कारण है या इस योग की वजह से? जी नहीं और करो कोई कारण है। दिस इज द डिफरेंट क्वेश्चन। आई एम टेलिंग दैट it is distinctly it is said that is Lakshmi Jog. Lakshmi Jog, why? I think Sri Jog. Sri Jog means the person becomes very perfectionist. If you judge the chart, the person having Chandra Mangala Yoga in this chart, they are very perfectionist. They, any work they have done or they does, they are very perfect. They try to do it perfect way. There will be no error. वासवती जी, you have to मुझे टिप्पणी करनी है छोटी सी। We are concluding this, that whatever the rishis has been said in yes, old books can't be yes, there is a big reason behind all these things. There must be a big reason. And what is that big reason? We have to know, or we have to understand the esoteric meaning of their slokas. Okay. तिवारी जी कुछ बोल रहे हैं? देखो कई इसके साथ जोड़ने की कोशिश करें, द्वितीयेश और लाभेश का संबंध है, इसको साथ देखो वो उसका अपना अलग संसार है। द्वितीयेश लाभेश का देखना, उसका कारक का देखना। और चंद्र मंगल युक्ति है, ये लक्ष्मी योग है, सूर्य बुध आदित्य योग है, गजकेसरी योग है, ये सर्वमान्य योग है। ऋषि मुनियों ने बहुत सर्च के बाद में ये लागू किया और कुंडलियों के अंदर है। इन पे उंगली उठाने आपको मैं हजारों कुंडलियां लाके दिखाऊं, एक दिन पूरा ले लीजिए आप, चंद्र मंगल पे हजारों कुंडलियां दिखाए, और कोई में अगर नहीं भी है ना, तो उनके इन योगों को कोई किसी प्रकार दृष्टि से पीड़ित है या उनका पूरी तरह से कुंडली बुरी तरह से पीड़ित है, तो भी योग अंदर खाते थोड़ा मोटा उनको दे जा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये लक्ष्मी योग कारगर है। फिर लाल किताब भी तो ये बात लिखती है ना, लाल किताब जो है चंद्रमा को धन भी मान, अगर अपने वैदिक ना भी ले तो रिफाइंड वर्जन लाल किताब है, वो कहते हैं कि चंद्रमा यदि द्वितीय भाव में जाता है तो वो उच्च का माना जाता है। क्यों मानती है? क्योंकि वो काल पुरुष के अंदर उच्च खाता है, तो चंद्रमा का जो धन में रोल लेता, हालांकि काल पुरुष में चौथे का मालिक होने के बाद भी लाल किताब उसको धन मानती है। जितना भी धन चेक करती है वो चंद्रमा से चेक करती है। तो मतलब मंगल शरीर हो गया और चंद्रमा दूसरे घर में जाके उच्च होता है, दोनों का संबंध जो है धन योग बनाता है। फिर पारस ऋषि खाली लग्नेश और द्वितीयेश, एक लग्नेश और द्वितीयेश के योग को धन योग नहीं मानते। पारस ऋषि द्वितीयेश का चतुर्थ, द्वितीयेश का पंचमेश, इन सब का संबंध मान के भी उसको भी धन योग मानती है। तो ये जरूरी नहीं आप दूसरा भाव ही देखो, उसके साथ साथ चतुर्थ भाव भी मजबूत है तो व्यक्ति के पास जमीन बढ़ रही है तो धन से तो वो बढ़ रही है। विजयनाथ जी बोल रहे हैं। विजयनाथ जी, इसका उल्लेख जो है बहुत अच्छा बोला है। लाल किताब में इस चीज को माना है कि वो माया और धन का ही कारक है चंद्रमंगल। ये लाल किताब भी स्पष्ट किया है कि चंद्रमंगल योग जो है उत्तम धन का कारक है। चलिए, तो आज मेरा दो चंद्रमंगल योग मेरा है। तो आप परफेक्शनिस्ट है या नहीं? ভালো আছে चंद्रमंगल युति ভালো আছে। हाँ, ढंग से करता है तो ऋषिकेश जी जो काम करता है जो परफेक्शन पसंद करते हैं। तो धन कहाँ से आ रहा है सर? देखो ऐसा चंद्र मंगल की युक्ति मेरे चाचा जी के हैं जो कुल्लू मनाली में रहते हैं, अच्छी प्रॉपर्टी है उनकी, अच्छी बना ली, और 5वीं क्लास फेल है वो, और लेकिन आज उनके पास कुल्लू मनाली को छोटा एरिया नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर्टी है उनकी, चंद्र मंगल युक्ति है। सिर्फ एक बात पूछी थी कि ये क्यों लक्ष्मी योग कहा जाता है। आई होप कि उसका क्वेश्चन हमने दे दिया है। अब फालतू बहस ना की जाए, अच्छा रहेगा। कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, हजारों कॉम्बिनेशंस हैं। पराशर जी कोई मूर्ख नहीं थे कि वो एक शब्द में एक बात कह देंगे और हम उस पर चर्चा करें। बहुत गुड बात करते थे जी वो परफेक्शन के साथ उन्होंने। और जो रीजन जो हमने पढ़े हैं, मैंने आपको तीनों रीजन दिए हैं, आप उस रीजन के एंगल से सोच के देखिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू ऑल माय डियर रिस्पेक्टेड एस्ट्रोलॉजर एंड वो क्या कहते हैं ना गुरुजन, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर 8 बजे आपसे चर्चा में आगे बढ़ेंगे, क्लास में आपसे सीखेंगे। आज की शानदार क्लास के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रो डॉक्टर विजयनाथ जी, एस्ट्रो अनिल शर्मा जी, एस्ट्रो डॉक्टर किशोर गिडियाल जी, एस्ट्रो रविंद्र पारिक जी, एस्ट्रो स्वामी आत्मविश्वास महेश पुरोहित जी, एस्ट्रो सुमित तिवारी जी, एस्ट्रो बासमती जी,
एस्ट्रो डॉक्टर ऋषिकेश देवनाथ जी, नमस्कार एस्ट्रो मोहन शर्मा जी, एस्ट्रो पीके पांडे जी, एस्ट्रो कल्पना शर्मा जी, और जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए मीना शर्मा जी, मीना बडानी जी, सुमन जी, कविता जी, सोनल जी, रूपा शाह, संजय मेहता, राजेंद्र जी, भरत कुमार जी, चेतन सोनी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं 8 बजे। और आपके लिए सूचना ये भी है कि आप विद्वानों के द्वारा धीरे धीरे करके वो जो कोर्स आपको स्क्रीन पे दिखाई देने लगे हैं, तो जो कोर्स में आपको एडमिशन लेना हो ले लें, और विद्वानों से भी आग्रह है वो कोर्स जरा जल्दी जल्दी अपलोड कर दें ताकि एडमिशन लेने वालों के लिए थोड़ा इजी हो जाए। प्रणाम, नमस्कार, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार नमस्कार। जय श्री राम।